Hello students, this is your second last lecture of this chapter and probably tomorrow we will finish this chapter. Topic for today is torque on current carrying loop kept in uniform magnetic field. Means you have created a uniform magnetic field with the help of two magnets and you kept a current carrying loop, then that loop current carrying rectangular loop, then that loop will experience some torque and starts rotating. So we will and this is the concept of electric motor. ये इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट है कि आप एक लूप जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देंगे तो वो रोटेट होने लग जाएगा और उस रोटेट होते हुए लूप के साथ अगर आपने एक्सल कनेक्ट कर दी तो आपको उससे कुछ वर्क डन मिलने लग जाएगा. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर जो कि 10th क्लास में पढ़ाई जाती है, 12th में नहीं पढ़ाई जाती. तो ये इस कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये किस तरह से काम करता है. तो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं इसका कि डायग्राम कैसा बनेगा. तो देखिए ये दो मैग्नेट्स हैं. दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, और इन दो पोल मैग्नेट्स के बीच में a rectangular loop is kept. This rectangular loop is kept. In this loop A, B, C, D, the name of the rectangular loop is A, B, C, D. The direction of current is in this direction. Means in anti-clockwise. Okay. Now, this is the direction of current and magnetic field lines always emerges out from the north pole and it gets enter in the south pole. So the direction of magnetic field lines will be like this. These are the magnetic field lines. I will name it as B. Now, if this current carrying loop is kept in this uniform magnetic field, then some kind of force its arms means AB arm, BC arm, CD arm and AD arm will experience some kind of force. अब इनमें कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगी और उसकी वजह से जो फोर्स होगी, फोर्स की वजह से इसमें टॉर्क लगने लग जाएगी. वो कैसे लगेगी हम देखते हैं. सबसे पहले हम अलग अलग आर्म्स के लिए फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. मैं वापस से बताता हूँ. अलग अलग आर्म्स के लिए AB के लिए अलग, BC के लिए अलग, CD के लिए अलग और DA के लिए अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स और उसका डायरेक्शन देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. तो देखिए फोर्स experienced by AB. AB ने जो फोर्स एक्सपीरियंस की है तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा. सो इट इज IBL साइन थीटा. साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड L. लेंथ जो कि करंट के डायरेक्शन को शो करती है. तो यहां पे देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री का. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 विल बी इक्वल टू 1. सो F विल बी इक्वल टू IBL. साइन 91 हो गया. चलिए ये तो हमने निकाल लिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड. अब डायरेक्शन क्या होगा. डायरेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. देखिए अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल I will keep my forefinger in the direction of magnetic field. I will keep my mid finger in the direction of current. Then the thumb will show the direction of force. So forefinger in the direction of magnetic field, current mid finger in the direction of current, then force will be outward, and outward
will be shown by, this is force outward and it will be shown by a dot. Okay, now this is one. Now force experienced by BC, then again F is equal to IBL sin theta. Here the angle between the length which is carrying current, length is basically showing the direction of current, so the direction of current is in this direction and magnetic field is also in this direction, so the angle between magnetic field and length which is showing current is theta is equal to 0 degree and sine 0 will be equal to 0. That means if sine 0 is 0, then whole value will become 0. So force is equal to 0. No force will exert on this wire. Okay, next, force experienced by CD. CD will be equal to F is equal to again IBL एंड डायरेक्टली मैं थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ. थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए एंगल करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सो IBL साइन 90 डिग्री. साइन 90 विल बिकम 1, सो F विल बी इक्वल टू IBL. नाउ we will find the direction of the force. So the direction of the force will be forefinger in the direction of magnetic field, mid finger in the direction of current, then force will exert in inward direction. So the inward direction will be represented by a cross. Okay, now next, force experienced by DA. So again the angle between the current and the magnetic field is 180 degree and sin 180 will be 0, so force will be 0. मैं लिख देता हूं यहाँ पे IBL sin 180 degree and sin 180 will be 0, so F is equal to 0. Okay, चलिए अब देखिए, ये जो दो वायर्स हैं हॉरिजॉन्टल, इन पे कोई फोर्स नहीं लग रही. ये जो वर्टिकल वायर्स हैं इन पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, और फोर्स लग भी रही है तो क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कुछ इस तरह से. फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. तो AB पे जो फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ लग रही है, CD पे फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, मतलब इसको अंदर की तरफ पुश किया जा रहा है, इसको बाहर की तरफ. तो अगर ऐसे फोर्स लगने लग जाएगी तो क्या ये रोटेट करना शुरू कर देगा? जब दो चीजों पे इस तरह से फोर्स लगती है इक्वल एंड अपोजिट, तो हम कहते हैं इट इज एक्सपीरियंसिंग टॉर्क. और टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी कोई चीज तो वो रोटेट करने लग जाएगी. ठीक है, तो सिंस लूप इज एक्सपीरियंसिंग couple of forces that is torque, hence it will start rotating. Now the formula of torque, अब इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे हम. torque will be represented by tau, this is tau, will be equal to, the formula of torque is force multiplied by perpendicular distance. तो force into perpendicular distance. अब देखिए perpendicular distance कैसे निकल के आएगा. देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपने डायमेंशन लिया, इस वाले डायमेंशन को हमने लिखा क्या, इस वाले डायमेंशन को लिख दिया ये हो गया लेंथ, और ये वाला जो डायमेंशन है ये हो गया कंप्लीट डायमेंशन. B मीन्स इट्स ब्रेथ. अगर इस वाले डायमेंशन को मैं हाफ में डिवाइड कर दूं, ये हाफ हो गया, तो ये डायमेंशन बना क्या, B/2. तो कंप्लीट लेंथ L और ये क्या हो गया, B/2. तो देखिए कैसे कैसे वैल्यू निकल के आएंगी इसकी, वो देखिए आप कि आप
किस तरह से इसको देखते हैं, तो ये तो इसका फ्रंट व्यू हो गया। अब अगर मैं इसको टॉप से देखूं, ऊपर से जाके देखूं, तो कैसे दिखाई देगा? मैं इसको अगर ऐसे देखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। मतलब कि ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये कंप्लीट बी हो गया, हाफ क्या हो गया? b/2। तो देखिए ये स्टार्टिंग में इस तरह से था, और स्टार्टिंग में इस तरह से होने के बाद ये रोटेट होना शुरू हो गया। अब जब ये रोटेट होना शुरू हो गया, देखिए स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको हाफ कर दिया तो ये b/2 हो गया। जब ये रोटेट हुआ यहां से यहां, तो ये यहां से यहां आ गया, ये एंगल बना क्या? थीटा। ये एंगल थीटा बना, ये भी क्या है? b/2। तो ये जो है ये वाला, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात? ये जो आपका लूप ऐसे रखा हुआ था, इस लूप को उठा के हमने कैसे रख दिया? हमने इसको कैसे इमेजिन किया है? हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ऐसे जब ये रोटेट हुआ, तो अगर मैं बोर्ड पे दिखाना चाहूं तो ये ऐसे से इस तरह से रोटेट हुआ है। तो रोटेट होते हुए इसने एंगल कवर किया कितना? थीटा। तो ये जो सामने वाला एंगल है, सामने वाला डिस्टेंस है, वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो इसने डिस्टेंस कवर किया है और जो इस पे फोर्स लगी है, वो दर्शाएगी कि इस पे टॉर्क कितना लगा है, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू कैसे निकल के आएगी? तो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ टॉर्क। अब देखिए टॉर्क दोनों आर्म्स पे लग रही है, एक आर्म्स पे, दोनों ही आर्म पे अलग अलग लग रही है, उनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो वो जो डायरेक्शन अलग अलग है, तो कैसे हम टॉर्क को लिखेंगे? देखिए टॉर्क विल बी इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? I/BL और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किसके लिए ले रहे हैं? सबसे पहले हम ले रहे हैं किसके लिए? AB के लिए। AB के लिए हम ले रहे हैं, तो AB के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे तो साइन थीटा अगर लगाया, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है, आप हाइपोटेन्यूज को यहां लेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? b/2। क्या आपको समझ में आ गई बात? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपके पास? b/2 साइन थीटा। अब ये b/2 साइन थीटा हाफ के लिए है, मतलब इस वाले आर्म के लिए है। ये वाली आर्म कौन सी है? ये वाली आर्म है क्या? AB। अच्छा, आपका ये वाली जो आर्म होगी उस पर भी तो लग रही है फोर्स, तो उस पर कितनी लग रही है? ये वाली आर्म कौन सी है? ये वाली आर्म है आपकी CD, ठीक है। तो उस पर भी फोर्स कितनी लग रही है? I/BL इंटू b/2 साइन थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है ये आपके पास ये ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे आ गया, जब ये घूमे तो ये आर्म आपकी AB हो गई, ये हो गई आपकी CD। तो दोनों पे जो फोर्स लगी है, दोनों पे फोर्स की वजह से ही तो ये रोटेट होना शुरू हुआ है। तो कपल ऑफ फोर्सेस में दोनों फोर्सेस का हमने ऐड कर दिया। b/2 साइन थीटा ये CD के लिए, ये b/2 साइन थीटा ये AB के लिए। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? I/BL, b/2 साइन थीटा प्लस b/2 साइन थीटा क्या हो जाएगा? b साइन थीटा, और L इंटू बी, L इंटू बी हो गया क्या? A। तो ये हो गया I इंटू A B साइन थीटा। L इंटू बी मीन्स एरिया, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ये एरिया आ गया हमारा। चलिए, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू IAB। अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इस पर लपेट दिए गए, लूप में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं, तो इफ n टर्न्स आर देयर इन लूप, लूप में n टर्न्स हैं, तो ये हो जाएगा NIAB साइन थीटा। और एक नया टर्म है यहां पे, नया टर्म क्या है? दैट इज NIA। NIA को हम लिखते हैं क्या? दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये B एज इट इज साइन थीटा, MB साइन थीटा। अब देखिए मैं मैग्नेटिक मोमेंट को आधे मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। अभी B मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, M अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एरिया वेक्टर है यहाँ पे, और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज में कैसा प्रोडक्ट हो कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर ही मिले?
तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू m क्रॉस b। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है? टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, सॉरी। अब बात करते हैं इस मैग्नेटिक मोमेंट की। आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस में डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। डाइपोल मोमेंट उस डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता था कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करेगा। वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी लूप की, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला है। अब देखिए वो किस किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा लूप में उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या शो करने वाला है यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करने वाला है कि कोई भी लूप कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये आपके पास आ गई। अब इसमें कुछ केसेस हैं, वो केसेस देख लेते हैं। देखिए केस वन क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक लूप का जो प्लेन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, मतलब लूप ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो लूप का प्लेन अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, दैट मींस प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू बी। ठीक है, उस केस में टॉर्क कितना लगेगा? तो देखिए लूप का प्लेन पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो प्लेन के परपेंडिकुलर बनता है एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर क्या है? उसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो लूप का जो एरिया वेक्टर है वो कहां बना? 90 डिग्री पे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो टॉर्क क्या होगा? उस कंडीशन में sin 90 1 हो जाता है और टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू NIA, मैं इस वाले फॉर्मूले से दे रहा हूं, B sin 90 1 हो गया, दिस इज मैक्सिमम। यहां लिख देता हूं मैं, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए केस 2, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिनिमम टॉर्क कब लगेगा? मिनिमम टॉर्क तब लगेगा जब ये जो लूप है, लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो देखिए उस कंडीशन में क्या हो गया? ये प्लेन ऑफ लूप हो गया, इसका लूप, ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आ रही हैं। तो हमें लूप के प्लेन से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है इसके एरिया वेक्टर से। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों में एंगल 0 डिग्री और साइन 0 होता है। तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, सो टॉर्क विल बी 0। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम टॉर्क इस कंडीशन में लगती है। ठीक है, इसके बेसिस पे ही नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट यही लगता है जो ये है।